ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ مرکز کی بی جے پی سرکار کارپوریٹ کمپنیوں کی خیرخواہ و مددگار اور غریبوں کے حقوق کو کر رہی فراموش، یونائیٹڈ ایکشن کمیٹی کا الزام۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر، اگلے ہفتے مزید درجہ حرارت میں گراوٹ کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی، عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے حکومت کر رہی لاکھوں روپیہ خرچ، مگر عہدیداران کی لاپرواہی و پودوں کی عدم دیکھ ریکھ، حکومت کا پیسہ اور مقصد ہو رہا ضائع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت کے ارب پتی اور اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں مالیاتی دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ اس معاملے کو لے کر بی آر ایس لیڈر وہ ایم ایل سی کے کویتا کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے زبردست بیان، کہا کہ مرکزی حکومت کا انصاف کے معاملے پر دوہرا معیار۔ اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں مالیاتی دھوکہ دہی کا معاملہ درج کیا گیا اور گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا، جس پر ایم ایل سی کے کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بیان جاری کرتے ہوئے فوراً گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس لیڈر و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کا انصاف کے دوہرے معیار پر استفسار۔ بی آر ایس لیڈر و سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا نے سیاسی گرفتاریوں کے درمیان اڈانی کو تحفظ پر مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اکھنڈ بھارت کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن انصاف کے معاملے میں دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو بغیر ثبوت کے گرفتار کیا جاتا ہے اور مہینوں تک محروس رکھا جاتا ہے، جبکہ مسٹر گوتم اڈانی متعدد مرتبہ اور سنگین الزامات کے باوجود آزاد ہیں۔ مرکزی حکومت کو آخر کون سی چیز کارروائی سے روک رہی؟ مرکزی حکومت کارپوریٹ کمپنیوں کو فروغ دے رہی اور غریب متوسط طبقے پر بوجھ ڈال رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کسانوں کی تحریک کے دوران کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ یونائیٹڈ ایکشن کمیٹی آف لیبر اینڈ کسان یونین نے کیا مطالبہ؟ شہر کی نام دیواڑہ دفتر میں یونائیٹڈ ایکشن کمیٹی آف لیبر، فارمرز اینڈ ایگریکلچر لیبر یونینز کے زیر اہتمام مرکزی حکومت کی مزدور، کسان اور عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سی آئی ٹی یو میں احتجاج کرنے کے لیے ایک گول میز میٹنگ کا انعقاد کیا گیا
और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ CITU ने एहतजाज करने के लिए एक गोलमेज मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर CITU जिला जनरल सेक्रेटरी सुधाकर, IFTU जिला जनरल सेक्रेटरी AIKS रियासती कायदीन भूमैया और CITU जिले जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि वो 4 मजदूर मुखालिफ मजदूर ज़ाब्तों को मनसूख करना चाहते हैं जो किसानों की तहरीक के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के किसानों से वादे किए थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को बेरोजगारों से किए गए वादों पर अमल करना चाहिए कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करें। वो पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी अशिया जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतों को कम करना चाहते हैं। वो मुफ्त मियारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करें। उन्होंने पब्लिक सेक्टर के इदारों को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने के अक़दामात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस माह की 26 तारीख को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे ताकि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से अपनाई गई मजदूर, किसान और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। इस मौके पर प्रभाकर, CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू, IFTU जिला नायब सदर शिव कुमार दीगर भी मौजूद थे। మోడీ ప్రభుత్వం గత 10.5 సంవత్సరాలుగా అవలంబిస్తున్నటువంటి రైతు కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా, ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్స్, అదేవిధంగా మిగతా ప్రజా సంఘాలు ఇవాళ నవంబర్ 26 నాడు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చాయి. ఈ పిలుపులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే రైతు ఉద్యమ సమయంలో రైతు ఉద్యమానికి మొత్తం దేశ ప్రజా సాక్షిగా నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చినటువంటి కనీస మద్దతు ధర కావచ్చు, మిగతా డిమాండ్లని వెంటనే పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా అనేక ఏళ్లుగా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మిక హక్కులను కాలరాస్తున్నటువంటి 4 లేబర్ చట్టాలను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఈ 4 లేబర్ చట్టాలను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు సుమారు 80% మంది ప్రజలు పెరిగిన ధరలతోని నిత్యావసర వస్తువుల ధరలే కావచ్చు, పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలే కావచ్చు, మిగతా అనేక రకాల तेलंगाना में अगले हफ्ते दर्जे हरारत 15 डिग्री से कम होने की पेश कयासी। अवाम एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात ने शहरियों को दिया मशवरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा हफ्ते के दौरान तेलंगाना में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने अवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। महकमा सेहत के मुताबिक सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा के केसेस में इजाफा हो सकता है और इस मौसम में बुखार, सर्दी, ज़ुकाम और गले की खराश इन्फ्लुएंजा की इब्तिदाई अलामत है। महकमा सेहत ने हामिला ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और सांस के आरिज़ा से मुतासिर मरीज़ों को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की ताकीद की। इन अफराद को मशवरा दिया कि वो बीमार अफराद से मेल जोल से गुरेज करें और सर्द हवाओं में बाहर जाने से परहेज़ करें। इसके अलावा मुनासिब नींद व वाफिर मकदार में पानी पीने और ग़िज़ा से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करने से न सिर्फ सेहत बेहतर रह सकती है बल्कि इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव मुमकिन है। महकमा ने शहरियों से अपील की कि वो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपने और अपने अहले खाना की सेहत का ख्याल रखें ताकि सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचा जा सके। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करें। साबिक ZP चेयरमैन D विठल राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया इल्ज़ाम और कहा कि वो ज़ाती तौर पर किसी की तौहीन नहीं कर रहे बल्कि हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी भी वक्त यकीन दहानियों पर अमल दरामद पर खुली बहस के लिए तैयार है। BRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी और ZP साबिक चेयरमैन D विठल राव ने ज़िला मरकज़ में BRS पार्टी दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमलावरी नहीं कर रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को ये कहकर धोखा दिया कि वो एक ही वक्त में 2 लाख रुपये का खर्च माफ़ कर देंगी और उन्होंने ये शर्त रखी कि वो हर किस्म की फसल पर 500 रुपये बोनस देगी।
उन्होंने सवाल किया कि किसानों के मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा कहाँ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने जो अनाज खरीदारी मराकज़ कायम किए थे वो गैर मुनज़्ज़म हो चुके, और कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए नौजवानों के लिए गुजारा अलाउंस और हर खातून के लिए 2,500 रुपये के मामले का क्या हुआ। गैस सब्सिडी चंद अफराद के लिए वक्फ है। पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कब होगी। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का वादा गलत है। इस प्रोग्राम में नुडा साबिक चेयरमैन प्रभाकर, सिटी सदूर सिरपा राजू, BRS पार्टी सीनियर कायदीन सत्य प्रकाश, फहीम कुरैशी, नरसा गौड़, विजय कुमार दिगर भी मौजूद थे। అమలు పరచక విఫలమైనందుకే దాని మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నిందించే తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎవరు కాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రెస్ మీట్ వ్యక్తిగతం కాదు. ప్రభుత్వం మీరు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో ఏం హామీలు ఇచ్చిండ్రు, మీ ప్రభుత్వము మీ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు 6 గ్యారంటీలు 420 హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక్కటంటే ఒకటి ఫ్రీ బస్ మహిళలు తప్ప ఏ హామీ ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు సవాల్ చేసిన దానికి మేము కూడా ఇప్పుడు కట్టుబడి ఉన్నాం. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే 2,500 ఇస్తామన్నారు, పెన్షన్స్ 2,000 నుంచి 4,000 ఇస్తామన్నారు, దివ్యాంగులకు 4,000 నుంచి 6,000 ఇస్తామన్నారు. మరి ఇవన్నీ మీరు ఇవ్వలేకపోవడం వల్లే మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు సవాల్ విసిరింది మోహన్ రెడ్డితో, సీఎం గారితో, PCC అధ్యక్షుడితో సవాల్ విసిరింది. నేను కోరేది ఏంటంటే అది మన లెవెల్ తేల్చుకునేది కాదు, అది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, PCC అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మా ప్రశాంత్ రెడ్డి, KTR హరీష్ రావు లెవెల్లో తేల్చుకునే సమస్య. కాబట్టి ఆ లెవెల్లో మరి మీ దమ్ముంటే మీ ముఖ్యమంత్రి గారు, మీ PCC అధ్యక్షుడు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వస్తాడో, ఏ విలేజ్లోకి వస్తాడో చెప్పండి. जात पात की मर्दमशुमारी होने पर ही BC के तहफ़्फ़ुज़ात को क़ानूनी हैसियत मिलेगी। BC वेलफेयर एसोसिएशन कौमी सदर G श्रीनिवास गौड़ का बयान। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना चाहते हैं। BC मर्दमशुमारी सर्वे में ताउन करें और मुकम्मल तफसीलात दें। शहर के मेरू भवन में BC वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन कौमी सदर G श्रीनिवास गौड़ ने मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि BC की मर्दमशुमारी दहाइयों के बाद की जा रही और सबसे ताउन करने को कहा। उन्होंने कहा कि BC को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए और इसके लिए जात पात की मर्दमशुमारी कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में सर्वे का अमल सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि महेश कुमार गौड़ PCC सदर हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आला ज़ातें जो कि रियासत में 8% भी नहीं ने 10% EWS रिजर्वेशन हासिल किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि BC के लिए अंग्रेजों के दौर में होने वाली मर्दमशुमारी में उनके साथ नाइंसाफी की गई। ये नतीजा अखज़ किया कि BC 54% है। उन्होंने कहा कि इस वक्त BC कुल आबादी का तकरीबन 60% है, जिनकी 130 जातें। हर किसी से सर्वे में ताउन करने और मुकम्मल तफसीलात दर्ज करने को कहा। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन कारगुजार सदर श्रीनिवास, यूनियन नुमाइंदे चंद्रशेखर, N सुधाकर, प्रसाद, रविंदर, हनुमंडू दिगर भी मौजूद थे। ఎంపీడీస్ ఉండా, జెడ్పీడీస్ ఉండా, ఉంటే రిజర్వేషన్ కింద అయినా జనరల్గా అయినా మీ జనాభా ఎంత రిజర్వ్ రాజకీయంగా నీకు దక్కిందంత తెలుసుకోవడానికి రాజకీయంగా అడుగుతారు. ఇక చివరిగా ఆర్థికంగా అడుగుతారు. ఏమన్నా చెప్తే టీవీ ఉంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, ఇల్లు ఉందని చెప్తే నా రేషన్ కార్డు ఇట్లా పోతుందయింది, నా రేషన్ కార్డు రద్దు అవుతుందయింది, నాకున్నటువంటి ఆసరా పింఛన్ పోతుందయింది, లేకపోతే నాకున్నటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు పోతుందయింది, నాకు వచ్చే ఇందిరా బిల్లు పోతుందయింది, సంక్షేమ పథకాలు రద్దు అవుతుందయింది అనుకుంటున్నారు. నేను అంటున్నా, ఒక్కసారి మీరు గుండె మీద చేసుకుని ఆత్మవిశ్వాసంతో మన కులాలందరూ చెప్పండి, సంక్షేమ పథకాలకు సమగ్ర కులగణకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి కులగణకు ప్రభుత్వం అమలు చేసేటువంటి సబ్సిడీలకు ఎలాంటి లింకు లేదు. ఇది కేవలం సామాజిక రిజర్వేషన్లు పెంచడానికి మాత్రమే చేసేటువంటి సర్వే. ఇందులో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంది కాబట్టి అన్ని అడుగుతారు. దీంట్లో ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానాలు. खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में
खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत लाखों रुपये हरिताहारम प्रोग्राम पर खर्च कर दिए और नर्सरियों को कायम कर दिए, मगर नर्सरियों पर हुक्काम तवज्जो नहीं दे रहे, जिससे नर्सरियों में लगाए गए पौधे सरसब्दो शादाब होने के बजाय सूख जा रहे। रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव के मज़फ़ाती इलाके में कायम की गई नर्सरी के पौधे सूख गए। मुतल्लिक़ा हुक्काम जवाब दे और नर्सरियों पर तवज्जो दें, मुकामी अवाम का इजहार। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जंगलात की तौसीक को बढ़ाने के लिए हरिताहारम प्रोग्राम का पुरजोश आगाज किया है। इसके हिस्से के तौर पर नर्सरी कायम की जाती है और पंचायत अमले और ओहदेदारों के जरिए पौधे उगाए और लगाए जाते हैं, लेकिन नर्सरियों पर हुक्काम की अदम निगरानी के बाद पौधे मुकम्मल तौर पर सूख गए। रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव के मज़फ़ात में कायम की गई एक नर्सरी में जो पौधे सरसब्दो शादाब होने वाले थे वो सूख गए। इससे अवाम का पैसा जाया हुआ। हुकूमत हरिताहारम प्रोग्राम को चलाने के लिए फी मर्तबा लाखों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन गोया ऐसा नहीं हुआ। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि नर्सरियों पर हुक्काम की मुनासिब निगरानी ना होने की वजह से नर्सरी में उगाए गए पौधे सूख गए। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमे के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर जवाब दें और नर्सरियों के इंतज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दें। कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आए 1 साल गुजरने के बावजूद मासूर अफराद से किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं कर रही और उन्हें पेंशन नहीं दे रही। NPRD रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ए गंगाधर का बयान। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार करें और मासूरों, बुजुर्गों और बेवाओं से किए गए वादों पर अमल करें। मासूर अफराद के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफॉर्म की जिले कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एडपली मंडल मुस्तक़ल में तहसीलदार दफ्तर पर धरना मुनाकिद किया गया। बादशाह तहसीलदार को दरख्वास्त पेश की गई। मासूर अफराद के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफॉर्म के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ए गंगाधर ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत इंतखाबात में मासूरों से किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं कर रही। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 साल गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने वादे के मुताबिक मासूरों को 6,000 माहाना और बेवाओं और मुअम्मर अफराद को पेंशन देने का मुतालबा किया। उन्होंने इन मासूर अफराद को माहाना 5,000-4,000 रुपये देने की दरख्वास्त की, जो आंध्र प्रदेश की तरह अपने जिस्मानी आज़ा को उठाने से कासिर और बैकलॉग पोस्टर्स को लागू करें। उन्होंने कहा कि मासूरों के लिए डबल बेडरूम मकानात और खाली जगह मख्तस की जाए। मरकजी हुकूमत 4,000 और रियासती हुकूमत से हर महीने की 5 तारीख से पहले कुल 10,000 पेंशन फ्राहम करें। इस प्रोग्राम में NPRD एडपली मंडल सदर राकेश वर्मा, मंडल सेक्रेटरी साइलू, मंडल खजांची, मंडल कमेटी के मेंबरान नरसागौड़, गंगाधर, जावीद दीगर भी मौजूद थे। ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి MRO ఆఫీస్ వద్ద ధర్నా చేసి MRO సార్ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చినాం.
మా యొక్క ప్రధాన సమస్యలు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 6,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలి. అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా 300 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తుంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా 4,000 పెన్షన్ ఇవ్వాలా. 2 ప్రభుత్వాలు కలిపి 10,000 పెన్షన్ వికలాంగులకు ఇవ్వాలా. అట్లాగే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను ఇవ్వాలా, ఇంటి స్థలాలను ఇవ్వాలా. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ పథకాలు ప్రవేశపెట్టినా 100 మందికి ఇస్తే అందులో 5 వికలాంగులకు ఇవ్వాలా. అట్లా వికలాంగుల సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలా. गुज़िश्ता एक हफ्ते से सर्दी में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी, बच्चे बूढ़े अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि मर्ज में मुब्तला होने का खतरा है। माहिर अतफाल डॉक्टर दीपक राठौड़ का बयान। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिले के दर्जे हरारत में कमी पाई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सुबह के 9 बजे के बावजूद धुंध और बर्फबारी की वजह से सूरज नजर नहीं आ रहा। शदीद सर्दी के बाद बच्चे और बूढ़े अफराद अमराज में मुब्तला हुए। बच्चों के अस्पताल बच्चों से भरे हुए। बच्चे नज़ला, खांसी, असहाल और बुखार में मुब्तला है, जबकि उनके वालिदैन डॉक्टरों से रुजू कर रहे हैं। इस मौके पर आर.के. लक्ष्मी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए नवमौलूद बच्चों का ख्याल रखा जाए। कहा कि जिन अवाम में कुव्वत मदाफियत नहीं होती वो दिगर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और तजवीज़ किया कि नौसायदा बच्चों और माँ को 100 वोल्ट के बल्ब वाले कमरे में रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हर 2 घंटे के बाद फीडिंग कराई जाए ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो और कहा कि सुबह 10 बजे तक भी शदीद सर्दी हुई और स्कूल जाने वाले तलबा मुनासिब एहतियात बरतें और बुजुर्ग अफराद सर्दी में बाहर ना निकले और सर्दी में चलने से गुरेज करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि खांसी और बदहज़मी के मर्ज में मुब्तला बुजुर्ग अफराद को इंतहाई एहतियात करनी चाहिए वरना दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। उन्होंने कहा कि अमराज संगीन होने से पहले अलामत की निशानदेही करें और डॉक्टरों से रुजू करें। మనం చూసుకుంటే చలి తీవ్రత చాలా పెరిగింది. సో 1 వీక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 3 to 4 degrees సెల్సియస్ డ్రాప్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉంది మన తెలంగాణ ఓవరాల్గా. స్పెషల్లీ నిజామాబాద్లో చూసుకున్నట్టయితే నైట్ టైం టెంపరేచర్ మాత్రం చాలా తగ్గిపోతుంది. సో ఈ తగ్గిపోవడం వల్ల మనము పిల్లల్లో తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏందో చూస్తాం. సో ఈ చలి తీవ్రత ఎక్కువ అవుతే ఏమవుతుందని అంటే యూజువల్గా టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల చిల్డ్రన్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కొంచెం డౌన్ గ్రేడ్ అవుతుంది. డౌన్ గ్రేడ్ అయినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి అండ్ స్పెషల్లీ ప్రీడిస్పోజింగ్ అంటే ఇది వరకు పిల్లలకి ఏమైనా శ్వాసకోత సంబంధించిన ఏమైనా వ్యాధులు ఉంటే ఆస్తమా అలాంటి వాళ్ళకు తీవ్రత కొంచెం అధికంగా ఉంటుంది. సో అలాంటి పిల్లలకు జాగ్రత్తగా యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. సో మనం మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే చలి తీవ్రత నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని రొటీన్గా మంకీ క్యాప్స్, హ్యాండ్ గ్లౌస్, లెగ్ గ్లౌస్ బదులు మనం సాక్స్ వేసుకుంటాం. అంటే ఫుల్లీ కవర్డ్ హ్యాండ్స్ గ్లౌస్తో పాటు ఇక్కడ 4 ఆర్మ్ కూడా కవర్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. అండ్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకు 9:30, 10కి కూడా చాలా చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఆ టైం అనే వాళ్ళకు కూడా మనము జాకెట్స్ లేకపోతే హుడీస్ వేసి పంపిస్తే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే एड़पली मंडल के धर्माराम गांव में लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम आँखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद। एक खुसूसी टीम ने आँखों का किया मुआयना और जिन अफराद की मोतीबंदू की तशख़ीस हुई उन्हें बोधन कांति अस्पताल में उनकी मुफ्त सर्जरी के इंतजाम किए जा रहे हैं। एड़पली मंडल के तहत धर्माराम गांव में एड़पली लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम आँखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। एक खुसूसी टीम ने मोबाइल आई स्क्रीनिंग एम्बुलेंस के जरिए 82 अफराद का मुआयना किया और 16 अफराद में मोतीबंदू की तशख़ीस हुई। बोधन कांति अस्पताल में उनकी मुफ्त सर्जरी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब मंडल सदर मनोज कुमार, नुमाइंदगान गंगा रेड्डी, के प्रकाश राव, राकेश वर्मा दीगर भी मौजूद थे। హాస్పిటల్ బోధన్ వారి ఆధ్వర్యంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఎడపల్లి వారు ధర్మారం గ్రామంలో ఉచిత కంటి ఆపరేషన్స్ గురించి ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన వారికి ఉచితంగా మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మూతబిందు ఉన్న వారికి ఉచిత ఆపరేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ
షుగర్ పరీక్షలు కూడా చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मरकज की बीजेपी सरकार कॉरपोरेट कंपनियों की खैरख्वाह व मददगार और गरीबों के हुकूक को कर रही फरामोश, यूनाइटेड एक्शन कमेटी का इल्जाम। तेलंगाना में सर्दी की लहर, अगले हफ्ते मजीद दर्जे हरारत में गिरावट की महकमा मौसमियात की पेश कयासी, अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हुकूमत कर रही लाखों रुपये खर्च, मगर ओहदेदारान की लापरवाही वो पौधों की अदम देख रही, हुकूमत का पैसा और मकसद हो रहा जाया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535211111।